Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra. Namaskar and welcome to yet another edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And friends, today being Sunday, we shall also be taking calls from you, our listeners, on mutual fund and related issues. So, you may call us on the numbers 2331 4444, 2342 1050 and 2331 0464. I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Subodh Mishra. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आकार रस्तोगी। आकार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहले हेडलाइंस के साथ लालिमा। Thank you, Subodh. Yes, the headlines first, friends. Prime Minister Narendra Modi underscores the role of youth in making India a developed nation, says India's Yuva Shakti is driving remarkable transformations. Investment in infra, productivity and law reforms will be the key to shaping India's future by 2047, says Union Minister Ashwini Vaishnav. And domestic markets to focus on corporate earnings, inflation data in India, China, GDP and oil prices for Qs next week. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की भूमिका को रेखांकित किया। कहा कि युवा शक्ति उल्लेखनीय परिवर्तन ला रही है। बुनियादी ढांचे, उत्पादकता और कानून सुधार में निवेश 2047 तक भारत के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, कहा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। और अगले हफ्ते देश के बाजारों का फोकस कंपनियों की आमदनी, देश के मुद्रास्फीति के आंकड़ों और चीन की जीडीपी के साथ तेल की कीमतों पर रहने की उम्मीद। Well, Prime Minister Narendra Modi has said that the potential of India's youth will soon make India a developed nation. Speaking on the occasion of the Vikasit Bharat Young Leaders Dialogue 2025 at Bharat Mandapam in New Delhi today, Mr. Modi said India's Yuva Shakti is driving remarkable transformations. On the occasion of the National Youth Day today, he said his faith lies in the new generation and the young generation will find solutions to all problems. Prime Minister Modi said achieving ambitious goals requires the active participation and collective effort of every citizen of the nation. He highlighted that India is accomplishing its goals in numerous sectors ahead of time. Prime Minister Modi said that a developed India will be one that is empowered economically, strategically, socially and culturally. He said the economy will boom and there will be plenty of opportunities to earn and learn. Mr. Modi highlighted that in the past decade, 25 crore people have been lifted out of poverty. He said India is rapidly moving towards being a $5 trillion economy. The Prime Minister expressed confidence that the Indian economy will cross milestone of $10 trillion by end of next decade. He said the world saw Chandrayaan success. Now we are preparing for the Gaganyaan. He said the country has to establish its own station in the space by 2035. Mr. Modi also said that by the end of this decade, India has set a goal of producing 500 gigawatt of electricity. आइए कॉलर्स के पास चलते हैं। लालिमा, मुंबई से दो कॉलर्स इंतजार कर रहे हैं। पहले हैं शिवाजी। शिवाजी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग टू एंटायर मार्केट मंत्रा टीम। मेरा एक सवाल है कि मेरे पास में अभी एक निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप है
एंड एसबीआई का स्मॉल कैप है। जैसे अभी 2025 में हर कोई बोल रहा है कि लार्ज कैप का बोलबाला रहेगा, तो क्या ये दोनों फंड निकाल के हम इसको लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? थैंक यू। देखिए, मैं पहले तो ये कहूँगा कि ये जो आप बता रहे हैं कि 1 साल की प्रेडिक्शन, इसके बेसिस पे अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो नहीं करनी चाहिए। जो स्मॉल कैप्स है ये एक लॉन्गर होराइजन के लिए होते हैं, इनमें शॉर्ट टर्म इंटरमिटेंट वोलेटिलिटी आती रहेगी। और देखिए, अगर मार्केट नीचे गिरेगी तो लार्ज कैप्स भी गिरेंगे, हाँ, बट ये ज़रूर है कि स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स से कम गिरेंगे। तो मेरा ये कहना होगा कि अगर अभी आपको इन पैसों की हाल फिलहाल में ज़रूरत नहीं और आपने एक अपने लॉन्गर होराइजन के लिए इन्वेस्ट किया है, जो कि हम लोग मानते हैं नॉर्मली 5 साल से ज़्यादा, और स्मॉल कैप्स के केस में 7, 8, 10 साल का मानते हैं, अगर आपने लॉन्गर होराइजन के लिए इन्वेस्ट किया है तो बस आप अपने एलोकेशन का ध्यान रखिए कि आपके पोर्टफोलियो में अगर आपने सोचा था कि स्मॉल कैप्स 15% या 20% रहेंगे तो उतने ही होने चाहिए, और बाकी आप इसमें निवेश बनाए रखिए, अभी निकलने की एसेट ज़रूरत नहीं है। Or have been now joined by Ayan, and Ayan is calling us all the way from Bengaluru. Oh, I'm sorry, we have Sanjay. Yeah, sorry, Sanjay is there जी with us from Mumbai. जी, yes, Subodh. जी Sanjay, सवाल पूछिए अपना जी। Sir, I am 100% invested in large cap funds for 2 years. I want to shift 30% of that money to small cap funds. And is it a right strategy? And how should I go about it? I should shift in one go, or I should buy STP? And if I have to do STP, for how long I should do STP? See, firstly, I would say whether you should be shifting to small caps or not depends on the purpose and your risk profile. So, small caps are generally more volatile than large caps, and they are the most volatile among large, mid, and small caps. But at the same time, they have the highest potential to give you higher returns over the long term. So, large caps are generally more stable. So if you increase the allocation of small caps in your portfolio, definitely it is going to be slightly more volatile. But at the same time, over the long period of time, you are likely to get higher returns. So I would say कि if you are ready for intermittent higher volatility and you are investing for the longer horizon, then definitely you should be investing in small caps, but maybe not 30% straight away. Maybe you can keep a 30% allocation for both mid and small caps, and small caps could be just maybe 10 or 15% of your portfolio initially, and after some time, if you are comfortable with their behavior, then maybe if you want, according to your risk profile, you can increase the allocation. So whenever we say that do not invest in a lump sum and rather spread your money, it is basically when you are taking an allocation into the equity asset class. Here, as I see in your case, you are already invested in equities. So most of the part is already done, but yes, you'll be moving to a slightly more volatile asset allocation. So maybe if you want, you can spread it over maybe say next 3 months or 6 months of the period. And likewise, Akar, do we see a trend changing now? People have more confidence. Indians have more confidence in investing in small and mid cap, unlike before. They seem to be. I would say that's basically because over the last 3 and 4 years, mid and small caps have been rallying a lot. And usually, what happens is when you see something giving very nice returns, so there's a FOMO that kind of forms, that you started feeling that you have missed the bus and you should also be a part of it. Right. So they feel that yes, we can also invest, but at the same time many overlook the involved risk. So here I would like to highlight that if you go back in the history, say in the year 2008, small caps were the one which fell by about 60%, slightly over than 60% in a single year. So meaning that if your invested amount was 1 lakh, it would have gone down to 40,000. So just be mindful of even such phases of the market and then accordingly invest. Right. आइए अगले कॉलर हैं बेंगलुरु से अयान, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। थैंक यू सुबोध जी, नमस्कार मेरा मार्केट मंत्रा टीम को, नमस्कार लालिमा जी को, नमस्कार सुबोध जी को, नमस्कार, एंड आकाश जी को भी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। आकाश जी, मेरा आपसे 2 सवाल है। सर, मेरे फादर एक सीनियर सिटीजन है, वो अभी 73 इयर्स के होने जा रहे हैं और उन्होंने मार्केट में निवेश किए हैं पिछले कुछ सालों से SIP के जरिए।
तो वो अभी एक मंथली इनकम जनरेट करने का सोच रहे हैं। तो सर हमें ये कहा गया है कि अगर आज के डेट में उनको 9 या 10% का रिटर्न मिला है तो क्यों ना हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर 6% का लगभग प्रॉफिट मान के उसको 6% इंटरेस्ट मान के उस तरह से हम लोग उसको विड्रॉ करें और हर 5 साल में उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाए। तो सर क्या ये सलाह सही है? इस पे आप अगर थोड़ा गाइड कर देते हैं कि अगर 9-10% का रिटर्न मिला है तो क्या 6% इसको मान के विड्रॉ करे और कुछ 3-4% मार्केट में रोल करता रहे प्रॉफिट का। और सर अगर इसको 5 साल में बढ़ाते हैं तो कितना प्रतिशत बढ़ाए हर 5 साल में? और सर मेरा दूसरा सवाल ये है, जैसा अभी आप कह रहे थे कि मार्केट में स्मॉल कैप गिरा था 2008 के टाइम लगभग 60%। तो सर अगर इस तरह से आज के डेट में मैं भी निवेश करता हूँ, मैं बस 34 इयर्स का हूँ, मैं भी थोड़ा सा एलोकेशन मिड कैप, स्मॉल कैप, थीमेटिक, सेक्टोरल हर जगह थोड़ा थोड़ा रखा हूँ, लेकिन लार्ज और मिड कैप, फ्लेक्सी कैप ये सब जगह भी रखा हूँ वैल्यू। तो सर अगर इस तरह से मार्केट कभी गिरता है और जब 2008 में गिरा था तब रिकवर होने में कितना देर लगा था, और आज के डेट में मुझे अगर लगता है कि आई एम मिसिंग द बस समहाउ, तो क्या थोड़ा थोड़ा पैसा हर जगह रखना सही है? अगर मार्केट गिरता भी है तो मैं मेरे लाइफ टाइम में उसको थोड़ा ऊपर जाते हुए देखूंगा। राइट, जी जी, थैंक यू जी। अयान जी देखिए, जो आपका पहले क्वेश्चन था आपके फादर के इनकम जनरेशन के लिए, उसके लिए मैं सबसे पहले कहूँगा कि आपको जो सलाह ये मिली है ये एकदम सही है। देखिए अगर आपको 9 या 10% का रिटर्न मिलता है और आप उसको 6% मान के विड्रॉ करते हैं और बाकी का 3 से 4% मार्केट में रोल होने रहने देते हैं, तो उसके पीछे कारण ये होता है कि जो भी इनकम आपको आज मिल रही है उसमें आपका गुजारा आज से कुछ सालों के बाद नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हम लोग मानते हैं कि ऑन एन एवरेज एक 6% से इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। आपने भी देखा होगा, आपके फादर ने भी देखा होगा कि ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो आज से 10-12 साल पहले, जैसे एक नॉर्मल दूध हो गया या ब्रेड हो गई, पेंसिल हो गई, वो आज से कहीं सस्ती मिलती थी। उसी तरीके से उनकी जो कीमत आज है, आज से 10 साल के बाद वो नहीं रहेगी, उससे ज्यादा होगी। तो होगा ये कि अगर आप उस 9% रिटर्न में से खाली 6% निकालेंगे और जो बाकी का 3% है उसको साथ में लगे रहने देंगे, तो जो आपका ओवरऑल कॉर्पस है वो भी बढ़ जाएगा। वो बढ़ेगा तो ही जब आप अगले सालों में, आगे आने वाले सालों में वापस 6% का विड्रॉ करेंगे तो वो आज से ज्यादा इनकम होगी। क्योंकि मान लीजिए आज 1 करोड़ रुपए आप उसमें से 6% निकाले तो आपके पास 6 लाख आया, बट आपको आज से 10 साल के बाद मान लीजिए वो 7 लाख चाहिए, तो 1 करोड़ पे 6% विड्रॉ के लिए वो 1 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो 7 लाख हो पाएगा। एट द सेम टाइम जो आपको एडवाइस है कि कुछ सालों के बाद उसको बढ़ाते रहिए, वो बेसिकली इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के लिए, यही कारण जो मैं कह रहा हूं। क्योंकि आज अगर आपका 1 लाख पर मंथ में गुजारा हो रहा है तो आज से 10 साल के बाद नहीं हो पाएगा। तो उसी इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने के लिए मतलब है कि उसको अपने विड्रॉल को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। बट आमतौर पर मेरी सलाह ये रहेगी कि आपका जो भी पोर्टफोलियो है, जो भी कॉर्पस रहता है, अगर आप एक कंजर्वेटिव 5 से 6% का एनुअल विड्रॉल रखते हैं तो वहां पे सही रहेगा। उसमें आपका जो, जिसको कहते हैं कि आपका कॉर्पस खत्म होने की संभावना नहीं रहेगी और एक इन्फ्लेशन एडजस्टेड इनकम लंबे समय के लिए मिलती रहेगी। और अगेन वहीं पे जहां पे की बात आती है कि आपका स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं कहूंगा कि आपके रिस्क प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। आपने बताया कि आपकी उम्र अभी 34 साल है, तो मैं ये मान रहा हूं कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, मे बी आपके रिटायरमेंट के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए, और अभी आपके पास अच्छा खासा समय है, तो आपको थोड़ा सा पोर्शन रखना चाहिए, 10-15% रखना चाहिए। बट साथ ही में मैं ये कहूंगा कि आपने एक बीच में वर्ड यूज किया था कि थोड़ा सा थीमेटिक फंड में भी लगाया है, तो कहीं दफा ऐसा होता है कि हमको लगता है कि बहुत सारी चीजें, तरह तरह के फंड खरीदना ही अच्छा है, बट ऐसा नहीं है। आप एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और मेजर पोर्शन जो एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स होते हैं, जैसे फ्लेक्सी कैप, मिड कैप होते हैं, उनको अपना पोर्टफोलियो का कोर रखिए। जो थीमेटिक फंड्स है उनमें तभी निवेश करिए जब आप उनके बारे में पूरे श्योर हो कि हाँ आपको उसके बारे में पता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, वो बहुत ही सिक्लिकल होते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं उनमें सारे सेक्टर्स का एक्सपोजर नहीं होता, कहीं ना कहीं उनका भी एक्सपोजर होता है। तो एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और इस पीछे मत जाइए कि अगर आप ज्यादा फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। आप उनकी क्वालिटी ऑफ फंड्स देखिए और आपकी जो असेट एलोकेशन है, जो स्ट्रैटेजी है, उस हिसाब से देखिए।
All right, Akar, that was really very, very clearly said, especially to those who are new to mutual funds. You put it all very clearly. Well, friends, we are now joined by Sri Raghavendra, who's calling us from Chennai. Ji, Sri Raghavendra ji, please ask a question. Yeah, good evening, everyone. Good evening. Yeah, so question is, like, I have some corpus which is mostly in FDs. I want to move that to equity funds. So my question is, like, I do not want to do it immediately, but maybe over a period of 2 years. So what will be a good strategy? Is it like good to move it to a liquid fund and then move it to equity, a portion of it, or can I directly go for medium and long duration funds in debt funds? The question I ask is, I have heard that overnight and liquid funds are suitable for a short term, like 1 year, but when I look at the returns, even the constant maturity fund, the long duration debt funds seem to be doing better. So can you clarify on that? So here I would say, firstly, you need to decide on the horizon for which you are investing. Let's say if you're investing for more than 5 years, then there is no need to go for medium or long duration funds. Right now, the higher return given by long duration funds has a different reason. That's basically related to the interest rates. But at the same time, when you're investing for a horizon of more than 5 years, it's better that you go for equity funds. And if you haven't invested in equities till now, then probably an aggressive hybrid fund, which is a mixture of equity and debt. So it invests around 70% in equity and the rest in debt, which cushions the downfall during sharp market declines. So then coming to your strategy, yes, do not invest a lump sum. You can go either way, either park it in a liquid fund and then set up a STP. I mean, that's perfectly fine. That basically ring fences your money and comes handy if you are scared of, or if you fear that maybe if the money is left idle in the bank account and then you might end up spending it over the next 2 years till the time it will be invested in the main target fund. On the other hand, if your investment horizon is less than 5 years, say 3-4 years or something, then coming to the debt funds, just stick with a normal good quality short duration fund. Long duration funds can be volatile, so they any debt fund which has a higher duration, a higher maturity duration, or the average maturity duration is likely more volatile and more sensitive to the interest rate movements. But whenever we are investing in debt, so the main objective should be preservation of the capital and stability. So over there, short duration funds are much better. जी, अगले कॉलर हैं वडोदरा से अनिल। अनिल, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। मार्केट मंत्री की टीम को नमस्कार सर। नमस्कार। मेरे पिछले संडे का एक सवाल कॉल कट जाने से अधूरा रह गया था। सवाल ये था कि मेरे पास 8 फंड है और इसमें मैं 4-5 फंड करना चाहता हूँ। तो मैं जो दूसरे खराब प्रदर्शन कर रहे हैं वो फंड में से पैसा निकाल के अच्छे प्रदर्शन करने वाले फंड में रखना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरा एनुअल इनकम 3.5 लाख है और जो फंड में निकालूंगा वो 5 लाख 7 लाख होगा। तो इनकम टैक्स कैसे लगेगा, तो लगेगा या नहीं लगेगा? देखिए, बिल्कुल लगेगा। कैपिटल गेन्स टैक्स के लिए आप लायबल होंगे जब निकालेंगे। तो अगर आपकी अभी ऑलरेडी इनकम 3.5 लाख है, तो जो एक बेसिक थ्रेशोल्ड होता है 3 लाख का, आप उसके ऑलरेडी अबव है। तो म्यूचुअल फंड्स में से जब भी आप विड्रॉ करेंगे तो आपका जो है कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। इक्विटीज की जब बात करते हैं, अगर आप इक्विटी फंड में आपने निवेश किया हुआ है और आपको इन्वेस्ट करे 1 साल से ज्यादा हो गए, तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में इक्विटी से अगर जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है, यानी कि अगर आपने उसका होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा रखा है, तो वो 1.25 लाख तक एक बेसिक एग्जेम्पशन होती है और उसके बाद 12.5% का लगता है। यहाँ पे एक क्लैरिटी मैं और देना चाहूंगा कि जैसे अभी आपने कहा कि 5 से 7 लाख रुपए और आप निकालेंगे तो क्या वो टैक्सेबल होएगा। यहाँ पे आपको ये ध्यान देने की बात है कि जो आप पूरा अमाउंट रिडीम करेंगे वो टैक्सेबल नहीं होएगा,
केवल जो प्रॉफिट है वो टैक्सेबल होएगा। अगर आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 3 लाख थी और अब वो 6 लाख हो गई है, तो 6 लाख में से 3 लाख कॉस्ट माइनस होकर केवल 3 लाख का जो प्रॉफिट है उस पर टैक्स लगेगा। वहीं अगर आपका डेट फंड्स है, तो डेट फंड्स आजकल नॉर्मली जो आपके गेन्स है वो आपकी जो इनकम है उसी में ऐड होके आपके स्लैब रेट पे टैक्स होंगे। और आकार इसमें एक भी बात, जैसे आपने कहा कि 1 साल में एक लिमिट है, वहां तक गेन्स हैं। मान लीजिए ये 3 साल का इन्वेस्टमेंट है उनका, अगर तो टैक्सेशन पे क्या असर पड़ता है? ये वाला जो भी पूरा फाइनेंशियल ईयर है 24-25 का, मतलब हर फाइनेंशियल ईयर में आपको 1.25 लाख तक के गेन्स होते हैं, वो चाहे इन्वेस्टमेंट कब की भी हो, जो आप बेचेंगे, जो टोटल गेन्स है उसमें से 1.25 लाख आपका एग्जेम्प्ट रहेगा। ये पूरे ओवरऑल इक्विटीज पे होएगा। इसमें अगर उन्होंने कुछ स्टॉक्स खरीद रखे हैं और वो भी 1 साल से रखे हुए उनको बेचते हैं, वो उसी एग्जम्पशन में शामिल होगा। हाँ जी बिल्कुल। All right, we have now Mohan and he's calling us from Kolkata. Yes, Mohan ji, please ask a question. Yeah. गुड इवनिंग मैम। Good evening, जी। मैम मैं प्राइवेट फार्म में जॉब करता हूँ। अच्छा जी। और मेरा वाइफ हाउस वाइफ है। उसका मेरा वाइफ का नाम में एक डीमैट अकाउंट है। तो अभी तक दिस फाइनेंशियल ईयर में तो अभी तक 3 लाख रुपया वो प्रॉफिट शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट गेन किया। और मान लो इस फाइनेंशियल ईयर में 4.5 लाख हो गया शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मिला के, तो टैक्स एप्लीकेबल कैसे होगा? थैंक यू। देखिए, जो अगर और कोई इनकम नहीं होती है तो जो न्यू टैक्स रेजीम है उसके अंदर आपका एक जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 3 लाख रुपए तक की है और ओल्ड टैक्स रेजीम में 2.5 लाख रुपए तक की है। तो यहाँ तक का आपकी ओवरऑल इनकम माफ होती है। उसके बाद जो अभी मैंने ठीक इससे पहले कॉल पे एक कैपिटल गेन्स के रूल्स बताए इक्विटी के लिए और डेट के लिए, वही आपके इक्विटी के एप्लीकेबल होंगे और उसके ऊपर जो भी आपका ये अमाउंट है, जो भी गेन्स है, वो अकॉर्डिंगली टैक्स हो जाएंगे। अगले कॉलर हैं नोएडा से पंकज। पंकज, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हेलो सर, मैं लालिमा डैंग जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार। उनकी आवाज हमें बहुत अच्छी लगती है जी। थैंक यू। रोटेन सुने या कोई भी न्यूज सुने उनकी आवाज से। थैंक यू। और मिश्रा जी आपको भी नमस्कार और श्रीवास्तव जी को भी नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये है कि म्यूचुअल फंड में जब हम SIP करते हैं किसी भी फंड में, तो उस फंड की क्या बेसिक जानकारी है जो हम लेनी चाहिए, उसके बाद उसमें SIP करनी चाहिए? सर इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप उस फंड के बारे में ये जानिए कि वो निवेश कहाँ करता है। वो एक इक्विटी फंड है कि डेट फंड है, एक हाइब्रिड फंड है कि क्या है। फिर उसके बाद बारी आती है कि जो वो एक अगर मतलब जो भी एसेट क्लास का फंड है उसको आप चेक करिए क्या वो आपकी जो रिस्क प्रोफाइल है, जो आपका गोल है, उससे मैच करता है। इक्विटी आमतौर पे तब अच्छी होती है जब आप 5 साल से ज्यादा के लिए निवेश कर रहे हैं। अगर वो मैच करते हैं तो इक्विटी में भी कई तरह है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और हर किसी के एक अलग चीज के लिए है। शुरुआती तौर पे एक आप डाइवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप फंड में करना चाहिए और कभी इक्विटी में नहीं करे तो आपको एक हाइब्रिड, अग्रेसिव हाइब्रिड लेना चाहिए। साथ ही में आप उनसे पूछिए कि ये फंड कितना पुराना है, ये कौन मैनेज कर रहा है, फंड मैनेजर के बारे में जानिए। आप आजकल सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिलती है, आप उनकी फैक्ट शीट्स निकालिए, आप देखिए कि वो पर्टिकुलर फंड अपनी कैटेगरी के बाकी फंड्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रहा है और केवल आज नहीं, उसने लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम में कैसा करा है। कम से कम 3, 5, 7 साल की हिस्ट्री उसकी देखिए और अकॉर्डिंगली फिर ये मेन चीज़ जानिए जो फंड मैनेजर है, क्या एकदम नया फंड मैनेजर है कि वो अभी आया है या पहले से मैनेज करता रहा है। क्योंकि अगर वो फंड्स आज अच्छे रिटर्न दे रहा है तो हो सकता है कि जो पुराना फंड मैनेजर जिसको जैसे आ रहा है आज वो नया वो फंड मैनेजर हो भी ना हुआ। तो आपको ये सारी जो बेसिक चीज़ें ये जाननी चाहिए और बहुत ज़रूरी कि आप उसको अच्छे से समझिए कि उसके रिस्क क्या है, खाली रिटर्न्स नहीं। जी। दिल्ली से कॉल कर रहे हैं योगेश जी। योगेश जी, प्लीज आस्क अ क्वेश्चन, सवाल पूछिएगा जी। नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर, मेरा सवाल ये है कि जो हमारा फिक्स इनकम एलोकेशन है वो भी शॉर्ट टर्म डेट फंड में और लिक्विड फंड में रहता है, तो इसकी बजाय क्या कुछ एलोकेशन आर्बिट्राज में डाला जाए, क्योंकि आर्बिट्राज में जो टैक्स एफिशिएंट है वो इक्विटी की तरह है। और एक दूसरा सवाल ये है कि ये PGIM के फंड को अचानक क्या हो गया है, कोई भी फंड अब परफॉर्म नहीं कर रहा है उतना अच्छा पहले की तरह।
देखिए, जो आपका पहला सवाल था लिक्विड फंड और आर्बिट्राज फंड, आप सही कह रहे हैं। जो आर्बिट्राज फंड्स है वो ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट होते हैं और उनका मेन कैरेक्टर जो है डेट के तरह रहता है। बट मेरी सलाह यहाँ पे ये रहेगी कि अगर आप उनको शॉर्ट टर्म पीरियड्स में देखेंगे, जो कि बहुत ही छोटे छोटे पीरियड्स होते, तो वहाँ पे आर्बिट्राज कंपैरेटिवली लिक्विड फंड से ज़्यादा वोलेटाइल रहते हैं। तो और बहुत एक आपको बहुत मेजर डिफरेंस नहीं मिल जाएगा रिटर्न्स में पोस्ट टैक्स, एक बहुत छोटा सा डिफरेंस मिलेगा। तो आमतौर पे ये स्ट्रैटेजीज तब कारगर साबित होती है जब अगर आपके पास काफ़ी एक बड़ा ह्यूज अमाउंट है जो कि आप पार्क करना चाह रहे हैं, तो और आप छोटी मोटी बीच की वोलेटिलिटी से थोड़े से एकदम से आपको दिक्कत नहीं होती। तो अगर काफ़ी बड़ा एक अमाउंट है और आप उसको कम से कम 1 साल के लिए रखना चाहते हैं तो आप आर्बिट्राज में जा सकते हैं। बट अगर आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए और भले ही उसके लिए थोड़े से कम रिटर्न्स हो, तो फिर आप लिक्विड फंड्स में रुके रहिए। अगले कॉलर के पास जाने से पहले एक छोटी सी खबर बता दें। केंद्रीय रेल तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात पर जोर दिया है कि 2047 तक भारत के भविष्य को आकार देने में बुनियादी ढांचे, उत्पादकता, कानून सुधार और समावेशी विकास में निवेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री वैष्णव गोखले इंस्टीट्यूट में आयोजित 2 दिवसीय पुणे पब्लिक पॉलिसी फेस्टिवल के समापन समारोह में बोल रहे थे। कार्यक्रम में उन्होंने विकसित भारत के 4 स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करते हुए दूरसंचार क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा की गई प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि नए स्टेशनों के विकास के साथ साथ रेलवे सेवाओं को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और इसके लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाएंगे। Well, we move on with another piece of news. After 2% plunge last week, domestic benchmark indices will focus on corporate earnings, inflation data in India, US and Europe. China's quarterly GDP numbers and oil prices. Next week, corporate earnings results will be in the spotlight as major companies including Reliance Industries, Infosys, HCL Tech, Tech Mahindra, Wipro, Kotak Mahindra Bank, HDFC Life Insurance, Axis Bank, SBI Life will declare their third quarter numbers, and global investors will also focus on the oil prices that jumped for third straight week following the announcement of sanctions by the US on Russian oil industry. On the macroeconomic front, focus will be on the inflation rate for December ahead of RBI policy meet in February. And now we are joined by Rakesh calling us from Shimla. जी राकेश जी, अपना सवाल पूछिए जी। नमस्कार। नमस्कार जी। जी मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि कुछ महिला जो हैं इसमें निवेश करना चाहती हैं, तो उनको कैसे प्रोत्साहन किया जाए? देखिए, बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स में आप उनको कहिए कि पहले में भी 500 रुपये से शुरुआत करें, कुछ महीने वो निवेश करेंगे, उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा जब वो देखेंगे कि कुछ लंबे समय में लगभग 1 साल में छोटा छोटा अमाउंट डाल के मार्केट में इन्वेस्ट करके वो बड़ा हो गया है, तो एक अपने आप अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, फिर लगता है कि हाँ मेरे को और इन्वेस्ट करना चाहिए। शुरुआत करने के लिए आप एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड से करिए। ICICI प्रू का इक्विटी इंडेक्स हो गया या मिराइसेट का इक्विटी हाइब्रिड हो गया, DSP का इक्विटी एंड बॉन्ड हो गया, तीनों ही अच्छे फंड है, आप इससे शुरुआत कर सकते हैं जी। आज के आखिरी कॉलर है भुवनेश्वर से वीरेंद्र, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। थैंक यू। नमस्ते मार्केट मंत्रा। अभी 2-3 प्रीवियस आंसर्स एक्सपर्ट्स ने दिए हैं और मुझे थोड़ा उससे कंफ्यूजन हो गया। उन्होंने बोला 3 लाख की इनकम से ऊपर जो इनकम है उस पर टैक्स लगेगा, तो जो म्यूचुअल फंड से या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से अगर 2-2.5 लाख की इनकम होती है, अभी तो टैक्स के रिजीम में 6 लाख तक कोई टैक्स ही नहीं है, 25। वीरेंद्र जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये 3 लाख और 3.5 लाख से ऊपर की इनकम होती है, जो आपने कहा 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, वो बेसिकली एक सेक्शन 87A में रिबेट मिलने की वजह से मिलता है। बट ये जो रिबेट होता है जब आपको कैपिटल गेन्स होता है, उसके इनकम पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में आपके टैक्सेस होते हैं, इस पे 87A का बेनिफिट नहीं मिलता, इसलिए ये टैक्सेबल हो जाते हैं भले ही आपकी टोटल इनकम 6 लाख से नीचे हो। जी, आकार मार्केट मंत्र में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। And friends, before we close, here's a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi underscores the role of youth in making India a developed nation, says India's Yuva Shakti is driving
remarkable transformations. Investment in infra, productivity and law reforms will be key to shaping India's future by 2047, says Union Minister Ashwini Vaishnav. And domestic markets to focus on corporate earnings, inflation data in India, China GDP and oil prices for Qs next week. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalema Aneja Dank, and my co-anchor Subodh Mishra signing off. Namaskar.